नमस्ते। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है पृथव बंग लाइव में। जैसे कि हर बार कहता हूँ, इस बार भी यही कहूँगा, नाम में क्या ही रखा है, इसलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट का कोई नाम नहीं है। यहाँ हम सिर्फ दो विचारों को मिलता हुआ देखते हैं और उससे ये कोशिश करते हैं कि एक घंटे में कोई कहानी रचे। आज हमारी इस कहानी के रचयिता है ऋतुराज घनवीर। ऋतुराज, आपका स्वागत है पृथव बंग लाइव में। आई एम रियली ग्लैड आपने टाइम निकाला इस इनिशिएटिव के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। मैं इंट्रो आपका इनका इंट्रो आप लोगों को सॉरी नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ इस एक घंटे के पॉडकास्ट के बाद इनका एक इंट्रो आप खुद अपने मन में बनाए। आपने क्या इनके बारे में समझा है? तो इसी के साथ ऋतुराज हम शुरू करते हैं हमारी ये एक पॉडकास्ट की कहानी। टू स्टार्ट विथ, व्हाट इज दैट समथिंग which motivates you to get up every day? What is that one goal which you have? My goal is to open one food franchisee जिसको globally expand करना है. That is one. इसका already I have begun the process. Okay. Second being I love to make logos. जो observation skill है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरी observation skill एक strength है, one of the strength है. अरे वाह। तो उसको मैंने monetize किया है and उसके जरिए I am giving identity to businesses. So I Okay. love to make identity, जो पहचान हम हिंदी में कहते हैं, business के लिए बनाता हूँ. So that is one thing which I love the most. Yeah, when you talk about logos, Yep. no, generally it might be the most neglected part in general in our traditional Indian business history. Right. Not speaking worldwide. Correct. What importance does a logo carry? And ये यार एक जनरल इंसान से पूछना is a different thing. But आपसे ये पूछना जो इस काम में हो day in day out. Right. What is your opinion? Yep. So whenever say यहाँ पे if we have different mobile which do not have logo, अगर मैं उस पे Apple का brand value लगा दूँ, so again इसकी value काफी बढ़ जाती है. Multiply 1000x. So that's a job of a logo. Logo can again as you mentioned 1000 times बढ़ जाती है उसकी value. तो logo is that something वो gradually जो brand value है वो एक दिन में overnight नहीं बनती है. It becomes थोड़ा process. It takes time. So brand value is something which logo that carries and वो perception बनता है आपके audience के mind में. That's why they pay higher. Got it. While I speak to Ruturaj in a very unconventional manner, who is Ruturaj? Ruturaj is a sweet, innocent guy. Which sometimes people say it's genuine. You are very genuine. And अपने में ही खोया रहता है कभी-कभी. And sometimes he picks a corner and वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाता है. And carefully observes surroundings. So that what people say and मैंने भी observe किया है. So while you talk about yourself and your observation, Right. have you been indulged into meditation or practices in sync with meditation? Correct. So there's one period. It's called Brahma Muhurta period. अच्छा. हाँ, it's from 3:30 to 5:30. मतलब In the morning. In the morning. So जब sunrise होता है, sunrise के पहले वाला जो period है वो. And it this period अगर आप कोई भी काम इसमें करते हो ना, so it multifolds. For example, if I ask universe कि मुझे ये चाहिए, so multiple universe gives back to you in multifolds. Got it. तो ब्रह्म मुहूर्त period is something where your creativity is at peak. मतलब जो भी काम करो, you will get boost up that charge up energy. जो भी काम करोगे, it like levels उसके बढ़ जाएंगे, multifolds होगा. Okay. So catalyst type है. Yes, correct, you can say. So this period is very precious. तो उसको काफी लोग ज्यादा यूज करते हैं मॉर्निंग में उठ के. This is something I practice. तो मेरा जो फर्स्ट लोगो मैंने बनाया था, I made it in ब्रह्म मुहूर्त period. And luckily उसमें मैंने रिसर्च किया, उसमें डिजाइन बनाया, स्केचिंग बनाया, and I delivered it to client. And first go में ही वो फाइनल हो गया था लोगो. I don't know क्यों हुआ, because I feel again logic of that ब्रह्म मुहूर्त period. So you believe in energies and you believe in everything. Universe. Second being meditation, as you say, I do visualization and affirmations as well. I recently And started you do it that. daily. How So difficult it is to do it daily? It's very simple. As soon as you wake up, the first 20 minutes, you are in that state. It's called alpha state. वो एक brain wave frequency रहती है. अच्छा. Yeah. So you visualizing whatever you have short term and long term goals. Khush also does the same. Many of my friends do the same. And उसके अलावा I do affirmations, positive affirmations. So Beautiful. whenever you wake up, मेरे को एक Google reminder आ जाता है, Google calendar reminder, जहाँ पे you have to do this thing. So I have listed down 21 affirmations that I do practice daily. Practice daily. Just for some disclaimer, Khush here is our friend Khush Mahajan. Yep. So and उनका भी इंटरव्यू आपको इसके पहले मिल जाएगा. Right.
to believe in these things like Brahma Muhurat or affirmations, initially this might not sound Gen Z, right, yep, जो एक फ्लो चल रहा है, एक मेन स्ट्रीम चीजें जो चले आ रही है right, इन दिस 21st सेंचुरी, व्हेन आप और मैं तो चलो समझ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, बट जनरली व्हाइल यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द लार्जर ऑडियंस, हाउ वुड यू डू इट? Yep. ब्रह्म मुहूर्त, अफर्मेशंस. So इंडिया में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं. Hmm. We have numerology, astrology, which is 5,000 years पुराना ये सब stuff है. What I can say to the audience is experience it. Wake up at 3:30, wake up at 4. मतलब you can wake up 1:30 minutes से लेकर 2 hours का period होता है ये, and you can wake up daily. First maybe आप sleepy feel करोगे, but as soon as you wake up, you try doing some activities. One of the hobbies, maybe writing something, journaling morning, early morning, maybe reading a book, कुछ भी आप करो. तो एक तो first thing benefit of doing it, एक तो काफी शांत रहता है, nobody is disturbing you. Environment is very calm, conducive very to calm. whatever you do. Yes. Second, again your creativity as it speaks. So whatever you absorb, whatever you read, वो आपको long term के लिए याद रहेगा. So if I tell audience, I will just tell them कि एक बार आप experience करो. Got it. Yep. So it's more like experiencing and learning than actually teaching it. Yes, exactly. क्योंकि if I tell them वो शायद हाँ बोलेंगे, but they will not try it. But if you have to reap the benefits, you have to actually try it. Absolutely. और दूसरों से सुन के तो सभी कर लेते हैं. Exactly. Nice. Now, when we talk about you and your business, Ruturaj, one thing which is often heard is this 5 alphabet word brand. Yep. इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, इसकी नहीं है. आज शायद नॉर्मल पानी की बोतल को भी बिस्लरी का नाम दिया जाता है बिकॉज आई बिलीव ऑफ द ब्रांड. फेविकॉल दो, ग्लू या गम मत दो. नूडल्स नहीं चाहिए, मैगी दो. सॉस नहीं, शायद किसान दो. ठीक है, आखिरी वाला थोड़ी ऑडियंस ही. So in this scenario, how important it is for these young entrepreneurs, young startups to encash their brand value, first part. Second part, for those businesses who have been here since a long time, they have the goodwill, but they might not have the brand value. Secondly, ये दोनों एक इसका जवाब अगर आप मुझे समझा सकते हैं. Right. The first being the importance of brand, which Gen Z should learn about it. अगर एग्जाम्पल लेते हैं लुई विटॉन का, एलवी का लेते हैं, एप्पल का लेते हैं, so they have built their brand value over the past these years. Overnight नहीं बना है. So there are certain parameters. मतलब ब्रांड, अगर ब्रांड की डेफिनेशन अगर बताऊं मैं आपको, so लोग समझते हैं कि ब्रांड, there's a very beautiful definition I have heard. लोगों को ब्रांड समझते हैं. People consider product or service as a brand. Got it. People consider packaging as a brand. Sometimes they say brand is something that made promise to their customers. Okay. It is not brand. So a brand is a result of customers' gut feeling and the perception about a particular product, service, or a company. Okay. So, and brand is a reputation. So every individual in the universe forms a unique perception about the brand. Okay, can you explain with some real life examples? Yep. For example, let's say if I buy an Apple phone, Apple के शोरूम में चला गया. For example, iPhone 16 launch हो रहा है. They are going to launch in September itself, second week of September. So मैं चला गया. My first time experience would be कि there is a long queue. Everyone is fanboy of Apple. तो मेरा experience रह गया first time, जैसे I am an Android user. If I buy Apple, मैं Apple लेने गया तो मेरा experience रहेगा कि there is a long waiting queue. मैं क्यों इतना समय दूं, अपना फोन तो फोन है. So that's one perspective. Second could be मैं उतना का फैनबॉय नहीं, तो आई वेट कि जब वो ई-कॉमर्स स्टोर पे आएगा देन आई परचेस इट. सेकंड बीइंग कोई वीआईपी है तो उसका परसेप्शन डिफरेंट है कि मैं वीआईपी हूँ, आई हैव कनेक्ट्स, तो उसका एक अलग परसेप्शन है. उसको दे गेट द मोबाइल अर्ली, कोई और रूट से ले लूंगा. these are the three different perceptions. ऐसे millions of perceptions each individual forms in their mind. So कंपनी का डिजाइन मैटर करता है, their message, their culture, their employees, what they think about this. So overall these parameters curate that brand. Oh wow. So ब्रांड ऐसा नहीं है जो एकदम बन गया कोई एक प्रोडक्ट से, कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी से. इट इज एवरीथिंग व्हेन टेकन टुगेदर टू मेक अ ब्रांड. यस, एंड टू ऐड दैट, अगर हमने हमेशा एप्पल को देखा कि दे यूज ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे कलर. द मोमेंट इफ आई टेल यू कि एप्पल का लोगो मैंने येलो कलर का कर दिया, you might not believe it. Exactly. So Gen Z has to
टेक केयर ऑफ द ब्रांड, जो ब्रांड गाइडलाइंस करके चीज होती है, दैट यू हैव टू फॉलो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू डोंट गो आउट ऑफ द ब्रांड गाइडलाइंस. अगर आप उसके वे के बाहर चले गए तो ऑडियंस को लगेगा दिस कंपनी इज डिफरेंट as compared to original. Fraud is absurd. type. Yes, that's why. So it's really important to have to maintain that, to use brand guidelines to form a perception in your audience, जो भी आप बनाना चाहते हो. Understood. And again coming to the second question, पहले का तो आपने जवाब दिया. दूसरा, अगर यार कोई ऐसी कंपनी है जो काफी समय से इस ट्रेड में है, किसी भी ट्रेड में हो, उनका गुडविल है, but they still do not have their own brand. With respect to them, what would you suggest? Yep. बहुत सारी कंपनीज ऐसे जो पास से कर रही है, बट देर आर सम कंपनीज, इसमें दो केस सिनेरियोज है, जिन्होंने ट्रेंड के साथ खुद को बदला ओके, बट फेल हो गए, ओके, और जिन्होंने खुद के साथ बदला बट दे गॉट सक्सीडेड. रिसेंट सक्सेस स्टोरी इज गैप का थिंग. वी हैव दिस GAP गैप, वेयर वी हैव स्पेसेस बिटवीन, इक्वल स्पेसेस बिटवीन थ्री वर्ड्स, थ्री अल्फाबेट्स. So उन्होंने क्या किया, they have paid $1 million to one agency to redesign their logo. अब उससे क्या हुआ, they have जितनी भी गुडविल थी उनकी, वो passed over. जैसे एग्जांपल, बहुत पुरानी कंपनी गैप, let's say 100 years पुरानी clothing company is what we are talking about. Yeah, गैप कंपनी. Yeah. तो the moment they change the logo to new logo, customers उन्हें पहचान नहीं पाए. अच्छा. हाँ, तो जितने भी स्टोर्स थे, they have spent millions and millions of dollars. जितने भी स्टोर्स थे across globally, they have changed the signages, जहाँ भी उनका लोगो लगा था, पैकेजिंग मटेरियल, डिजाइन, वो बिल हर जगह, बिल, टैग्स जो क्लोजिंग्स पे लगते हैं, एवरीथिंग. अंडरस्टूड. हाँ, उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, एंड कस्टमर्स उसको पहचान नहीं पाए. दे थॉट कि बाप रे, दिस इज अ रीसेंट थिंग. रीसेंट मतलब काफी है, बट दिस केस स्टडी इज वेरी पॉपुलर. ओके. या तो कस्टमर्स को पहचान नहीं पाए, तो जितना भी गुडविल गैप ने बनाई थी, सब खत्म. उनकी सेल में गैप आ गया, बहुत सही में बहुत ह्यूज गैप आ गया. सो दे हैव लॉस्ट शेयर्स, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस. तो इतना लॉस भी हो सकता है यार. या सो कंपनी ने क्या किया फिर, दे हैव शिफ्टेड टू देयर ओल्ड लोगो इटसेल्फ. अभी धीरे धीरे दे आर ग्रोइंग, बट दिस वाज द मेन केस स्टडी. तो व्हेन यू फॉलो द ट्रेंड, समटाइम्स इट बैकफायर्स यू. ओके. यप, लोग आपको पहचान नहीं पाए, तो जितने भी गुडविल बनाए थे, जितने भी ब्रांड वैल्यू बनाया था, सब goes in. So आपकी बात का सार ये है कि you know it is not don't make a brand because everyone is making it. Herd mentality. Don't follow the trend every time. Okay. But again ये तो आपने सवाल पोस्ट कर दिया मुझे, इसका जवाब. Yep. तो अगर मैं ट्रेंड फॉलो ना करूँ तो क्या करूँ? Yep. You should first test it. पहले टीम मेंबर में टेस्ट करो. Like every time I make logo, तो मैं स्ट्रेंजर्स को पूछता हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्लाइंट को दिखाने से पहले. सो गैप ने गलती, मे बी दे हैव डन टेस्टेड, इतनी बड़ी कंपनी है, बट ट्रेंड को हमेशा फॉलो ना करें. रीजन भी, यू शुड हैव टेस्ट इन योर ओन कंपनी फर्स्ट, रादर देन डायरेक्ट मार्केट में उतरो. अगर कोई एक कंट्री में या छोटा एक मार्केट पकड़ो, स्पेसिमेन लेके अगर करेक्ट वहां पे सक्सेस मिल रहा है आपको अलग अलग प्लेसेस पे, देन यू गो इन द मार्केट. अच्छा, नहीं तो इट डेफिनेटली बैकफायर, व्हिच इट हैज. यप, डेफिनेटली. गॉट इट. एक चीज, मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप मुझे समझाओ, दैट how does brand and logo come together and you know take a company forward? मतलब इनका जो मिश्रण होगा, अगर दोनों चीजों का, if they mix, how do they mix and what impact does it have? I'm really sorry, मैं आपको इसी सवालों से पेस्टर कर रहा हूँ. Just it's not every day you find a person who is so interested into these things, you know. Yes, yep. So brand की definition मैंने बता दी. Brand is something which an individual creates in their mind, perception about a particular business brand. Second being the logo. Logo is just an identity and nothing else. एक पहचान हम हिंदी में कहते हैं, that's it. And branding is a small part of the marketing. Okay. If I give an example, let's say Starbucks का logo. If you visit Starbucks, नागपुर में है. If you visit, अब तो शायद 2 हो गए हैं नागपुर. हाँ क्या? हाँ, मुझे लगता है. Yep. वैसे भी अपने आप चीजें इतनी जल्दी डेवलप हो रही है. Exactly. सिर्फ तू जो देख है. जो से कह रहा है. Inside joke है. So when you enter in Starbucks, आप देखते हो कि you feel certain kind of aroma. That is a part of branding. That is called sensory branding. Oh wow. And what is sensory branding? Sensory branding which touches all your 5 senses. For example, your skin, your taste, that is tongue. Second, third being the visual. Fourth is your listening, and fifth is, I forgot the 5th one. जो 5 senses रहते हैं ना, touch, feel, smell, hear. Yep. That all 5 senses trigger करते हैं. That is called sensory branding.
Wow, man. So one of the branding that Starbucks is using is this The aroma वाला वाला thing. smell वाला thing. हम्म। So आपको पता लग जाता है कि you are in Starbucks, तो वहां से एक्सपीरियंस आपका शुरू होता है. मतलब इंसान के दिमाग में इतना हिट करती है ये सब चीजें, Right. सबकॉन्शियसली आई बिलीव। Yep. And when you see that green color logo, तो green का भी एक अलग पर्सपेक्टिव है. अच्छा। Green का भी see growth. So there are many parameters. एक कलर फील हमको आता है. If I talk about Zomato का red color evokes hunger वाला emotion. So that's how a color plays a major Even I'm role. copywriting this content, ये कहीं जाएगा नहीं बाहर इस पेज से। Right. So there is logic behind Logic everything. behind Okay. color. अगर Zomato की कंटिन्यू करूँ बात, Zomato तो वेरी सिंपल लोगो. दो ही चीजें उसमें, एक तो वी हैव रेड कलर व्हिच इवोक्स हंगर वाला इमोशन. सेकंड भी उसका लोगो इज थोड़ा टिल्टेड, नॉट स्ट्रेट, थोड़ा इटैलिक फॉर्म में. एग्जैक्टली। द रीजन मी इट शोज दैट वी हैव दैट स्पीड अगेन रिलेटेड टू डिलीवरी थिंग उनका, that we deliver fast. Again, it's a food delivery company. Understood. There are only two parameters and उसके basis पे they are having good. So is there something with Domino's also or Swiggy also? I'm so curious कि आप इस तरीके से इसको dismantle कर रहे हो. Yep. So Domino's का I don't know. I know the story behind जो दो dots हैं उनके. We have एक बड़ा rectangle. Then we have a line between them. Yes. which becomes two squares. First is one circle. Second square में you will find two circles. So what they did is कि they have multiple outlets. They were opening multiple outlets. So they wanted कि हर एक box में एक circle बढ़ता रहे उनका. Like first square में first circle रहे, second में second रहे. But वो idea fail हो गया because they have now multiple franchises. More than नागपुर में इतनी मुझे नहीं पता शायद कितनी होगी. Yeah. So they have only one and एक square में one and second But square. initially ये logic था उनका. Yes उनका. Wow यार, this is मतलब you know हम अक्सर नॉर्मल इसमें ये सोचते नहीं है, ना ही इतना ध्यान देते हैं. यार वाउचर लगा, खा लिया, खत्म कहानी. कौन तो उसके जोमेटो का जेड टिल्टेड है देखे, या रेड इवोक्स हंगर, ये तो शायद बायोलॉजिकल भी होगा, बट शायद अभी ये डिस्कशन में हमको रियलाइज रेड अगेन क्रिएट्स अर्जेंसी. तो उसके मल्टीपल, हाँ जैसे वो अलर्ट भी रेड का होता है. करेक्ट. द फायर एम्बुलेंस इज रेड. ओह माय गॉड, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग. यार व्हाई आर यू एन इंजीनियर? Again, as you mentioned about herd mentality, so I was just following the crowd. So you're so creative, and this is exactly opposite to any person but an engineer. Correct. मतलब I believe you would be a person who would choose humanities or might go into designing maybe. Right. So I'll tell you the story. Please do. 11th 12th चले गए. Then friends सब spread up हो गए. Then luckily fortunately I got admission in Raisoni, one of the top 3 colleges in Nagpur. काफी अच्छा कॉलेज है. So वहाँ पे I got IT department. ठीक है. So first year is very common, second, third, fourth. And during engineering you have to pursue 2 internships. One is of 1 month, second is of 6 months. So मुझे 3-4 साल में पता लग गया था कि I am not meant for coding. Got it. I got Thank God placement. आपको पता लग गया. I got placement in MNCs also. Capgemini वगैरह एक दो कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था. But जब internships का जब आया, you have options list आई. You have data science, you have AI, you have website development, you have graphics and animations. So हमारी जनरेशन में अगर आप देखोगे ना तो टेक्निकल गुरुजी तब बहुत चलता था. टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं. So ब्रांड. Yeah, part of branding. So जब उनका कोई भी वीडियो शुरू होता था, so वीडियो शुरू होने से पहले एक लोगो रिवील आता था उनका. लोगो एनिमेशन एक लोगो समझा, एनिमेटेड एनिमेशन फॉर्म में आता था. दैट इज कॉल्ड अ लोगो रिवील. तो वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था कि बॉस ये बनता कैसे है. अच्छा. तो जब मेरे पास लिस्ट आई एआई वेबसाइट क्या करना है, तो आई थॉट कि लेट्स मूव टू दिस ग्राफिक्स एंड एनिमेशन थिंग. सो मैंने 1 month की इंटर्नशिप किया. सो मैंने सीखा, काफी टूल सीखे. उन्होंने मुझे एक प्लेसमेंट ऑफर भी दे दिया कि मैंने then I did 6 months का इंटर्नशिप. तो मुझे लगा कि दिस इंडस्ट्री इज वेरी क्रिएटिव. इसमें बहुत फ्रीडम है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर, इसमें अगर मैं निमुराज जी का पार्ट घुसा दूं, सो आई एम अ नंबर 3. मेरा बर्थडे 24 अक्टूबर को आता है. 2 + 1 = 3. सो नंबर 3 आर, मतलब उनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है. सो आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट दे आर नॉट मेंट फॉर द जॉब. So many feathers to your hat. तो मुझे पता लग गया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर किसी के अंदर काम करना या जॉब के लिए बनाना. सो आई वाज फॉर्चुनेट कि आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस. तो इंटर्नशिप में मुझे पता लग गया था कि आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री. एनिमेशन के लो, ग्राफिक्स के लो. तो मुझे उन्होंने प्लेसमेंट ऑफर दिया कंसीडरिंग माय परफॉर्मेंस, माय क्रिएटिविटी. सो आई गॉट प्लेसमेंट देयर. फिर मैंने 1-2 साल वहाँ पे जॉब भी किया. फिर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, मुझे प्रमोशन दे दिया. देन मैंने एक दिन बैठा, खुद से बात की
कि इफ मैं इतना अच्छा कर ही रहा हूँ तो Hmm. लेट्स नॉट व्हाई नॉट फॉर्म योर ओन कंपनी. Exactly. तो मैंने वैसे ही फॉर्म कंपनी किया. राइट नाउ वी डू वीडियो एडिटिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड वी हैव फुल फ्लेज्ड branding agency that we do for Indian So clients. what is the team count as in? Yep. For video editors, we have 6 to 7 people. We are hiring more because videos are the future. लोग सब कुछ वही कंज्यूम करें. Right now, this form of content is on Also, video. आप भी वीडियो देख रहे हैं, Right. मैम या फिर सर? Yep, correct. And for branding, यहाँ पे उतना क्रेज नहीं है नागपुर में. धीरे धीरे इंडिया में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रहा है कि व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो धीरे इसका फॉर्म हो रहा है. राइट नाउ वी हैव गुड टीम ऑफ ब्रांडिंग फॉर ऑल्सो. But very realistically speaking, what is the span in which you think India will understand this game, which you have at a very young age? Yep, correct. You will see the trend changing in 3 to 5 years coming. इतने जल्दी? इतने जल्दी क्योंकि ऑलरेडी जो टियर 1 सिटीज है बैंगलोर मुंबई वहाँ पे पीपल आर क्रिएटिंग ब्रांड एंड वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल स्निच कह लो आप ब्रांड. The clothing brand. Exactly. तो उन्होंने क्या किया लाइक Zara is their competitor, H&M is the competitor. फैशन ब्रांड बनाते हैं बट एट थोड़ा अफोर्डेबल कॉस्ट में. कुछ ऐसा लोगो है ना, ऐसा कुछ स्निच का लाइक थ्रेड एंड दिस लाइक स्टिच. यप. ओके. सो दे आर नॉट लाइक Zudio जो कि एकदम ही कम प्राइस में करते हैं. अगेन दे आर अ फास्ट फैशन ब्रांड एंड नॉट heavily priced like Zara and H&M. They are completely medium and their quality is great. But tell me something about this video editing fiasco. Yep. This has skyrocketed like anything, I must say, man. Correct. I mean, I'll be very frank with you. आज से 5 साल या 6 साल पहले 7 साल पहले कोई पॉइंट नहीं था. वीडियो एडिटिंग कुछ पता भी नहीं था कुछ होता है. Right. वो सिर्फ वो इन वीडियो ऐप पे जाओ, 2-3 रंग डालो, नीचे बस उसका वो हटा दो जो भी आ रहा है वाटरमार्क और बन गया वीडियो. पर ये जो एक पूरा वेव आई है वीडियो एडिटर्स की, जितनी डिमांड है ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू सम यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस? शुड दे हैव दिस एम्यूनिशन इन देयर आर्सेनल? यप. सो इट्स अ स्किल जो कि आई बिलीव सबके पास होनी चाहिए. ओके. यप. मतलब इंडिस्पेंसेबल स्किल. यप. आई इफ यू आर अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में या काम करना दिस यू कैन कंसीडर एज अ पार्ट टाइम आल्सो. यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ दैट स्किल. फ्रीलांसिंग. या एंड ये स्किल कभी वेस्ट नहीं जाएगी बिकॉज आई सी वीडियोस आर द फ्यूचर. मतलब काफी लोग वीडियोस को देख रहे हैं एज अ फ्यूचर एंड इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून. सो इट्स डेफिनेटली इफ यू हैव इट इन योर आर्सेनल. सेकंड बीइंग वीडियोस आर द फ्यूचर. क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज जब से जियो का बूम आया लास्ट कपल ऑफ 5 to 6 years, जब से जियो वाली वेव आई है, दे आर गिविंग यू फ्री इंटरनेट. सो लोगों का कंजम्पशन काफी बढ़ गया है. यार कुछ भी कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, कोई सरपैर ही नहीं है. मतलब वो कोई गाना रिलीज हुआ अभी हाल ही में, तमड़ी कुछ तो भी, दैट इज गोइंग वायरल. देयर इज नो लॉजिक इन दैट सॉन्ग, लॉजिक इन दैट वीडियो. इट्स जस्ट कोई बूढ़े इंसान को नए कपड़े पहना के आप डांस करवाते हैं, गो वायरल. मतलब कंटेंट कंज्यूम होना तो शायद इतना रैंडम है. बट सो लीडिंग दिस टू अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज अ गोल्ड माइन? Yes. Creating content, is this a gold mine? I'll tell you. We used to be a digital marketing agency. 1.5 साल पहले तक हम थे. The reason why we stopped that agency because वो हमने सर्विस बंद कर दी इसलिए because we found like we along with me there are 2 partners. Total we are 3 partners. So we found that there is saturation in the market. Like many freshers are coming up. Digital marketing industry में they take the work of clients and वो रिजल्ट्स ला नहीं पाते बीइंग अ फ्रेशर. उतना नॉलेज नहीं. तो क्लाइंट को लगता है कि दिस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग फॉर मी. सो वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं बट फ्रेशर्स ला नहीं पाते. होता नहीं है. यप. सो वी थॉट कि ठीक है वी हैव न्यूमरस केस स्टडीज. क्लाइंट्स के लिए हमने फ्लैट्स बेचे वर्थ crores रुपीस. बहुत सारे रिजल्ट्स लाए क्लाइंट्स के लिए. बट वी स्टॉप, वी रिसर्च्ड इन मार्केट. वी सॉ दैट दिस ब्रांडिंग थिंग कह लो, मोर प्राइमरीली वीडियो एडिटिंग थिंग इज गोइंग लाइक क्रेजी. ठीक है. हाँ यार, आई मीन क्रेजी चल रही. So we have shifted that to video, complete digital marketing agency. We have shifted to video editing agency. And you found growth? Yep, definitely found growth. उसके भी पीछे एक बैक स्टोरी है. We have tried Indian market as well. So we have formulated an affordable package. Let's say 10,000 में 10 videos where we will help you in scripting, shooting as well as editing. Sometimes maybe posting on social media also. But this price point itself थोड़ा expensive लगा Indian market के हिसाब से. उनको लगा, हमने ट्राई किया. Then 2-3 महीने हमने ट्राई किया. Then we have shifted to international market. The whole perspective change. In international market में they are very clear with their expectations and requirements. They pay you very well. The revisions काफी कम आते हैं. Because of that clarity, your workflow, your cash flow, everything seems aligned in your place. So we were very happy कि we took this decision कि हमने digital marketing से यहाँ पे चला गया. And this is actually a gold mine. What is the percentage of your clients
इंडिया एंड बाहर के रेशो? इंडिया में वी हैव ओनली 2 clients एंड बाहर में मोस्टली वी हैव फ्रॉम यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड. मेजरली? Yep. ओके. एंड यूएस का मार्केट इतना बड़ा है कि मैं अभी तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया. सो देयर आर मेनी, व्हाट यू से, मेनी नेटवर्किंग ग्रुप्स, मेनी चैप्टर्स, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है यूएस का. इफ अगर वो फॉर्चुनेटली कैसे ना कहीं खत्म होता है थ्रू द वे आई एम अप्रोचिंग, जो वे है, उसके बाद आई विल एक्सप्लोर नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जहाँ पे यूरोस, डॉलर्स वगैरह चलते हैं. अगेन इट्स डेफिनेटली अ गोल्ड माइन. सो वीडियो एडिटिंग इज दैट स्किल that you should have, at least now current scenario में everyone is going content बना रहा है कोई ना कोई. we are making content. इसके लिए इसके बाद भी एक पोस्ट प्रोडक्शन टीम रहेगी. again a job of video editor. oh my god, all connected. and एकदम से बूम आया, ऐसा था भी नहीं कि ग्रेजुअली आया हो या कुछ आया हो. if I जियो का इसमें काफी मेजर रोल है, because of free internet. जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक correct समझ कैसे आएगा. When you talk about these skills, you know, एक क्वेश्चन मैं आपको एजुकेशन को लेके पूछना चाहता हूँ. या जनरली ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर ये टेक्निक्स कभी हमारे करिकुलम में हमें नहीं मिलते. राइट. बट यू नो, एज ऋतुराज and as a person who has been into all of this, has served a lot of clients, do you think we should have this in our curriculum? Definitely होना चाहिए. तो we have entrepreneurship, video editing. So we have various institutes. NID है, National Institute of Designing. रिसेंटली मुझे कॉल है अपने कॉलेज से, मैं एल्यूमिनाई मीट में गया था. तो माय क्लास टीचर कॉल्ड मी, ऋतुराज, वी हैव टू फॉर्म वन कोर्स कॉलेज में ऑफ अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग. इट्स अ 30-day कोर्स आपको बनाना है. आई सेड फाइन. सो कॉलेजेस आर चेंजिंग. लाइक मेरा कॉलेज था काफी अच्छा था. आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट tier 1 tier 2 सीरीज के कॉलेज आर लाइक दे आर चेंजिंग देयर करिकुलम. दे नो कि दीज थिंग्स आर अभी कंपल्सरी, मैंडेटरी, दीज आर द फ्यूचर. सो मुझे कॉल आया, वाज वेरी हैप्पी कि जो ट्रेडिशनल चीजें चल रही थी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर मूविंग टू दिस ग्राफिक डिजाइन स्किल एनहांसिंग. व्हाट यू सो यू नो, जनरली यार मार्केट में तो बथेरे कोर्सेज है. इधर से कर लो, उधर से कर लो, कैनवा कर लो, डाविंची रिजॉल्व कर लो. राइट. amidst all of this, how can one person or one student or me in that case follow a path जो कि सही हो या फिर करेक्ट हो? करेक्ट. सो मैं अपना बात बताता हूँ कि व्हाट हाउ आई लर्न. एग्जैक्टली. सो हम इंटर्नशिप में सिखा गया. देयर इज वन गाय कॉल्ड GFX मेंटोर, इमरान फ्रॉम पाकिस्तान, कराची. सो बहुत आराम से पढ़ाते हैं, बहुत हौले हौले पढ़ाते हैं, एवरीथिंग प्रीमियर ग्राफिक डिजाइनिंग. उनके पेस इज वेरी नाइस. जिससे आप सिखाते हैं हिंदी उर्दू मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत अच्छे सिखाते. ही हैज दैट क्लैरिटी जो कि बिगिनर को भी समझाएगा, काफी अच्छा समझाएगा. सो वी हैड दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे यू कैन लर्न. इफ यू वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग, यू हैव दैट प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स. इफ यू वांट टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, तो फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है. देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स व्हिच ही हैज कवर्ड. सो यूट्यूब पे इट्स फ्रीली अवेलेबल प्लेलिस्ट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि GFX मेंटोर से आप स्टार्ट कर सकते हो. आई एम पिनिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Yep. And if you want to go advanced, intermediate level पे जाना है, then you have to buy some courses, paid courses. See, जहाँ जो पेड कोर्सेज में आपको नॉलेज मिलता है ना, शायद आपको ये फ्री वर्जन में ना मिले. यार ये एक तो पता है, एक बहुत डिफिकल्ट सी चीज है. हम हमेशा इसको एक्सपेंस मानते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते. कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स का, पेड कोर्स को, अरे फ्री में देख लेंगे, यूट्यूब पढ़ा है, आपको क्यों खरीदना है, कुछ भी वहाँ सब फ्री है. बट ये मेंटालिटी कैसे चेंज करे मेरे दोस्त, कि दिस इज समथिंग व्हिच यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ एंड नॉट स्पेंडिंग. अगेन इफ आई कनेक्ट द डॉट्स ऑफ अर्लियर, जो मैंने पहले कहा था कि एक्सपीरियंस करो, ब्रह्म मुहूर्त का एक्सपीरियंस करो. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड द कोर्स, थोड़ा देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हो. या नॉलेज गेन कर सकते हो. मतलब इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर से 50,000 का कोर्स है, इफ यू डोंट हैव द मनी, यू कैन फाइंड वन फ्रेंड जो कर सकता है, जिसने किया है. एंड देयर आर फ्री मेथड्स आल्सो जहाँ से आप यू कैन एक्वायर. हां, अंडरस्टूड. से नो मोर वाला डिस्कशन. से नो मोर डिस्कशन. सो I'll tell you कि मेरा कोर्स ने लाइफ कैसे चेंज किया है. I have bought this course of Rajiv Mehta, which is a like very. Who is Rajiv Mehta? Rajiv Mehta is one of the top designers of India, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ काम किया है, many big multi-million companies as well. So he has creating that branding wave. उनका एक अभी recent upcoming course आ रहा है, which I'm going to buy. तो if I talk about paid course, they have covered various topics, like what टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, टाइपोग्राफी विच वी सी इन डेली लाइफ, लोगोस कैसे बनाते हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, हाउ डू यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर्स, कलर्स. इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू पिक कलर्स, ऑब्जर्व द नेचर, ऑब्जर्व द बर्ड्स, you will find n number of colors. Oh wow. And मैंने जो लोगो का प्राइस है, फॉर एग्जांपल इफ आई चार्ज 1 rupee फॉर टू मेक अ लोगो, एंड मैंने इसका कोर्स देखा कि हाउ डू यू मेक लोगोस,
वहां से मेरा परसेप्शन चेंज होगा कि आई शुड चार्ज मोर। मुझे लगा कि जो उसने टिप्स एंड टेक्निक्स बताई दैट यू डू नॉट फाइंड इन फ्री वर्जन से यूट्यूब पे वगैरह, जो कि आपको पेड कोर्स से मिलती है या कोई मेंटोर से आप इंस्टीट्यूशन से जा रहे हो वहां से आपको सीखते हो। सो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि इफ आई एम चार्जिंग 1 रुपी आई कैन चार्ज 10x 20x इन द मार्केट इटसेल्फ एंड आई एम डूइंग राइट नाउ इट ऑल। मेरा माइंड शिफ्ट तब हुआ जब व्हेन आई बॉट दैट कोर्स, तो मुझे वहां से नॉलेज मिला जो मैं काम कर रहा हूँ उसका आई कैन चार्ज 10x 20x, the value of your work is more than what you estimate, and you will find those clients as well. मुझे clients मिले, being Nagpur considering tier 2 city, I charge थोड़ा heavily तो मिल जाते clients because your work speaks of quality. Correct. And clients का भी vision होता है, they are definitely finding so good give designers. them time and space to communicate their vision to you. आप उतना patience रख के समझते हो उनका vision क्या है. Right. So there's one client जो लाइट इंडस्ट्री में जिनका हेडक्वार्टर्स अभी नागपुर में रहेगा, साउथ अम्बाजरी में दे आर ओपनिंग वन शोरूम। देयर विजन इज टू क्रिएट मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ऑफ दिस अक्रॉस स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, एमपी में, महाराष्ट्र में। सो दे हैव विजन, सो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद अ लो ग्राफिक डिजाइनर से लो स्टैंडर्ड ग्राफिक डिजाइनर। एब्सोल्युटली। एंड यू नो मुझे भी ये चीज लगती है कि ये कोई कॉस्ट कटिंग का सिनेरियो नहीं रहा। मतलब ये तो उल्टा आपका फोर फ्रंट पे होना चाहिए। अगर बैक ऑफिस आपका इतना स्ट्रांग है बट फ्रंट ऑफिस में आप बोल रहे हो कोई ऐसा ही लोगो खुद से बना लेता हूँ या लेती हूँ, तो आप खुद को हार्म कर रहे हो। क्योंकि यार घर तो गेट खुलने के बाद दिखता है। हाँ बिल्कुल। तो घर अंदर से कितना भी अच्छा हो, गेट ही आपका सही से नहीं है तो फिर क्या इंप्रेशन जमाओगे। वेरी वेल पुट, वेरी वेल। तो यही सीखा हूँ मैं आपसे एक घंटे में। दिस इज हाउ आई एम पुटिंग व्हाट आई हैव लर्नड। एंड इफ आई आस्क यू, अगर आप लो वाले स्टैंडर्ड ग्राफिक डिजाइन के पास जाते हो तो ऑफ कोर्स कॉस्ट बचेगा आपका, बट उससे जो फ्यूचर स्पेंडिंग एक्सपेंस आएगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक लोगो बनाना है फॉर योर प्लाईवुड कंपनी, आपने दे दिया कि भाई दिस इज अ ग्राफिक डिजाइनर जो कि मेरे बजट में काम कर रहा है, मेरा बजट इतना था, ये उससे भी कम बजट में काम कर रहा है, लेट्स से 500 रुपीज। तो उसने लोगो बना दिया आपके लिए, बट आप गए उसको ट्रेडमार्क कराने, रजिस्टर कराने गए, एंड आपको पता लगा कि देयर मल्टीपल ऑब्जेक्शंस हैव कम अप, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और बिकॉज उसने वो लोगो बनाया नहीं है, उसने कॉपी पेस्ट किया इंटरनेट से। सो ट्रेडमार्क हो नहीं रहा, रजिस्टर नहीं रहा। जस्ट इन केस आप मान लो कि ट्रेडमार्क भी हो गया, जस्ट इन केस गवर्नमेंट के अथॉरिटीज ने कुछ उनसे मिसप्लेस हो गया, ओवरलुक कर दिया, ओवरलुक कर दिया, रजिस्टर हो गया, समझ गया। एंड व्हाट इफ जिसका ऑलरेडी कोई इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका हूबहू सिमिलर एलिमेंट्स आपने कॉपी किया, आपके डिजाइन में कॉपी पासिंग ऑफ में लग जाएंगे, तो वहां से पेनल्टी, कॉपीराइट इश्यूज वो आते हैं फ्यूचर्स में। सो दीज थिंग्स वो समझते नहीं क्लाइंट्स व्हेन दे लाइक एक्सपांड करते हैं अपनी कंपनी, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट फ्यूचर में। अभी वो दे टेक एज अ वेरी लाइटली, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अपन भी तो ऐसे ही करते हैं, गूगल से उठाया, पीपीटी में डाल दिया, इधर से स्टॉक इमेज उठाई, इधर से वो उठाई, बट फिर किसी दिन यार ये सब वैसे भी होता तो किसी दिन ही है, वो किस दिन जिस दिन होता है वो आखिरी दिन निकल जाता है अक्सर लोगों के लिए। You have to pay really heavy penalty. And more than the penalty, your company goodwill is lost, reputation is lost, redesign everything. जाना तो आपको लोगों से ही जा रहा है, वही बदलना पड़ गया, राइट? तो क्या संबंध बनाओगे आप लोगों से? क्रेजी। बट यू नो आई बिलीव ये फील्ड का चार्ट अभी तो बहुत ऊपर जाने का है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। मतलब ये तो बहुत समय है इसको सैचुरेट होने में, बहुत ज्यादा। एटलीस्ट लोगो डिजाइनिंग का स्पेसिफिक में बात करूँ, और अब जितनी ज्यादा लोग कंपनीज बना रहे हैं, जितने ज्यादा लोग खुद की एस्टैब्लिशमेंट्स बना रहे हैं, ये चीज अब और फ्लो में आने वाली है, मुझे लगता है। यस, डेफिनेटली आने वाली। गुड टाइम्स अहेड फॉर ऋतुराज, आई मस्ट से। यस, बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी। इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, ऋतुराज। One message which you want to deliver to those who are watching, let them be of any age or any background or any person, very random, be it a robot of Elon Musk. What is that one message which you want to give them with respect to you, your life experience, and how have you taken control of your life? अपने मन को control करना is the deal, is what Chanakya said. Yep. And while I speak to you, and the patience which is, which you embrace, and the exuberance of how पैशनेट यू आर वाइल यू नो द रियलिटी ऑफ इट। ऐसा भी नहीं कि हसल में पागल हो जाओ, और जिस तरीके से आपने खुद को काम और कंपोज रखा है, उसका एक सजेशन अगर आप दो सको। बिल्कुल। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ट्रैवल इज द वन थिंग, आप व्हेनेवर यू आर ट्रैवल यू मीट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, आप सीखते हो लैंग्वेजेस, आप ऑब्जर्व करते हो चीजें को। सो ट्रैवल एंड ऑब्जर्वेशन आर द टू थिंग्स जो मेरे लाइफ में काफी important role play किया है। Okay. इसके basis पे ही I have, because if you travel to some other countries, say other cities, you have that
you get those observations, those insights, learnings जिसको आप रियल लाइफ चीज़ें में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ मैंने अगर किसी को लाइट को देखा है, कंसिडरिंग द लोगो वाला एग्जाम्पल, सो I made that logo using real life observations. मैंने dots connect किए and that's how experiential learning is exactly. तो वो nature से मेरे पास observation आया, and अगर मैं travel नहीं करता तो वो insight मुझे नहीं मिलती. Got it. And travel से you feel calm, composed. Travel से you get those insights. Again, fun factor तो हमेशा रहता है, but excitement, thrill. Correct. तो मेरा message वही रहेगा कि do travel a lot, gain those experiences, have fun. वो insights आप gain करो, and कभी ना कभी वो observation, insight future में कभी ना कभी काम आएगी. One thing about your company, just a small intro. Yep. So we are one of the topmost agencies in Nagpur जो कि international clients के लिए काम कर रहे हैं. और मैं इसका मोहर लगा रहा हूँ, trust me. Yep. This is not for branding क्योंकि ये मेरे परिचित है, इनको जानता हूँ. This is because I have that confidence on this product कि मैं अपने goodwill पे उस चीज को sell कर सकता हूँ. So we are a full-fledged video editing agency primarily, where we edit शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे 30-40 मिनट्स की, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल जो 7-10 मिनट्स का रहता है. थर्ड बिंग द पॉडकास्ट जो आप शूट करते हो. अगेन पॉडकास्ट ट्रेंड इज ग्लोबली, दैट्स व्हाई वी आर इनटू दिस वीडियो एडिटिंग एजेंसी प्राइमरीली. सेकंड बिंग द ब्रांडिंग, वेयर वी क्रिएट कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी, नॉट जस्ट द लोगो. You again use of all sensitive branding, brand solutions, पैकेजिंग, आपके जो आपके कंज्यूमर टच पॉइंट्स है. लाइक आई टॉक्ड अबाउट सेंसिटिव ब्रांडिंग, स्टारबक्स वाला. वो एक्सपीरियंस क्रिएट कैसे करना, वो परसेप्शन कैसे बनाना, दैट वी डू. Beautiful. How do they reach out to you? You can connect me on Instagram. It's rare.ruturaj. You can message me anytime. I'm always on. Happy to connect. As I said you, आपको इनका परिचय खुद डिस्कशन से मिलेगा, और उसका परिचय आपको कैसे मिल रहा है? rare.ruturaj. So this is the deal. It was lovely hosting you, Ruturaj. I'm really glad you came up and you brought this specific knowledge with respect to how people can identify themselves and their companies in a manner which might be 2x2, but जिसका impact is definitely more than 2x2. Yes, correct. Yes, so thank you so much people for joining in. ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं. अच्छा लगा तो बस मुस्कुराओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलते रहेगा. दैट इज नॉट द एंड, दैट इज जस्ट अ मीन्स टू द एंड. इफ यू लाइक द कंटेंट, आई एम ग्लैड यू लाइक इट. थैंक यू सो मच.